Hi guys, welcome to Humans of FAS. I'm Arisha Tahir and this is my co-host. Aliza Usman. So basically the purpose of this podcast is to bring forth those people जिन्होंने FAS के लिए बहुत काम किया है, जिन्होंने उसको revive किया है and उसको वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ पर वो आज है. So for a little back story. सीन ये था कि अभी recently we had gone on a trip to Sawat. FAS का official नहीं था but it was an outside company at Reveline. More on that later. Stay tuned. बट हम मोस्टली FAS के ही लोग थे एंड हमारे एक्स FAS मेम्बर्स थे और वहाँ पे बैठे हुए वी रियलाइज कि इट्स रियली सैड कि अभी जो बैचेस आए हैं दे हैवंट बीन एबल टू एक्सपीरियंस FAS व्हिच इज़ अ वेरी वाइटल एक्सपीरियंस इन फास्ट इस्लामाबाद. So we thought कि even though we couldn't bring the adventure to you, what we can do is share our adventure stories with you and give you something to look forward to. So with that, it's only fitting that we start off with our first guest, Mohammad Hussain, aka MD. Hi guys. So MD please sir अपना introduction दें और बताएं सबको कि आप कौन हैं. मैं भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ. आप लोगों की तरह फास्ट में पढ़ा हुआ हूँ और आप लोगों की तरह FAS का पार्ट रहा हूँ अराउंड 2.5 ईयर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर. और आप लोगों की तरह जैसे आप लोग ट्रिप्स पे जाते हैं आप लोगों के साथ ही जाता रहा हूँ और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता रहा हूँ क्योंकि जैसे बोला कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ तो थोड़ी बहुत करनी होती है. यस एग्जैक्टली. अच्छा, so क्या चीज़ थी ट्रैवलिंग के बारे में which caught your interest at first? Like what is the thing that made you realize कि ज़िंदगी में एडवेंचर की बहुत ज़रूरत है? अच्छा, इसको मैं ऐसे समराइज करूँगा कि when I first started traveling abroad actually I used to meet other people who had different perspectives on the world. तो people interacting with other people and how they had different mindsets than our own and knowing they had different perspectives made me want to travel more and meet new people. For me, traveling is not just seeing new places, it's about also meeting new people and interacting with those people and somehow also trying their cuisine and other culture as well. Yes, food is very important. Yes. Yeah. So what was your first adventure? Like what's the first adventure that you remember? Okay, that's a very big question, I would say. Very long question. If you go back, शायद बचपन में कोई इमरान खान गया होगा मैं. But I would say when I used to travel solo myself with my own car or with friends, I would say those would be my first adventures. And for me, traveling was like knowing a destination and driving there by myself. And there is no specific first adventure, but knowing that we went there by ourselves was my first adventure experience. I can tell because हम चोलिस्तान पे गए थे and that was one hell of an experience. हमारा first actual adventure experience was with MD. वहाँ पे हम पहली बार MD से मिले थे. Exactly. Damn. अच्छा. Somebody who picks up the speaker and dances. Okay. Okay guys, coming back. Sorry मेरे कुछ technical difficulties हो गई थी. MD. So we've heard कि हमारे like शुरू में बीच में FAS के अंदर थोड़ा सा hiatus आ गया था. तो how did you guys revive it back? Like what was your role in it? Back in spring 2018, myself, Hasham and Hamza Bhai, as we all like to call him, his name is Hamza Saeed by the way, we decided to revive Fast Adventure Society and we had to work on operations and various other challenges that we faced. तो उसमें शुरू में हमारी सिर्फ ऑन कैंपस ही एक्टिविटीज़ थी जिसमें EEFSM और CS के 14 बैच के जो फाइनल ईयर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो सब हमने किए. तो उसके बाद हमारा जो समर आया उसके बाद जो हमने पहला मेजर इवेंट कह लें, ट्रिप कह लें, फेरी मेडोज़ हम उसमें लेके गए थे. तो दैट वाज लाइक आफ्टर रिवाइवल ऑफ FAS हमारा पहला चैलेंज था, पहला ट्रिप था. तो इसमें वी ऑल प्लेड अ वेरी बिग रोल एंड हमारी माशाल्लाह से एक पूरी कोस्टर जो है ना हम भर के लेके गए थे.
उसके बाद द नेक्स्ट टेन्योर वी उसमें भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी रिवाइवल था उसमें. वी हैड टू फिक्स ऑपरेशंस, लेकिन दैट वाज द टाइम व्हेन वी हैड एडवेंचर गाला ऑन कैंपस. और इन माय ओपिनियन उसकी डिकॉर टीम एंड वैसे भी द इवेंट इन जनरल एक नेस्कॉन लेवल का था. नेस्कॉन अगर आपको पता हो, लाइक हमारा यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप इवेंट है. तो जो एडवेंचर गाला था जो पहला था हमने जो कराया था उसमें इट वाज ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ नेस्कॉन. तो दीज वर सम चैलेंजेस दैट वी फेस्ड इन द रिवाइवल ऑफ एफएएस शुरू में. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख लें कि it is one of the most popular societies on campus. Exactly. And hopefully you guys get a chance to experience that too. Yes. Inshallah. Inshallah. I think that we all really want to know because हमें पता है हमने बहुत स्टोरीज सुनी है एमडी के बारे में, all the interesting trips. तो सबसे spontaneous trip कौन सा था? You know, out of nowhere जो was. अच्छा, spontaneous trips. You can't say सारे spontaneous थे. इसमें हाँ सारे spontaneous नहीं थे, लेकिन there are way too much trips that I've gone to spontaneously to mention over here. What's your favorite one? यार फेवरेट सारे ही होते हैं ऐसे ट्रिप्स इस तरह से. अच्छा, इस तरह से स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स में मेरा ये होता है कि आई ओपन गूगल मैप्स, रिलेटिवली करीब जगह कोई हो, राइट 100 किलोमीटर इश करीब उसमें आई पुट अपना लोकेशन पिन ऑन गूगल मैप्स एंड आई ड्राइव ओवर देयर. ठीक है, लिटरली एक गांव के बीच में जगह होगी, बिल्कुल सन्नाटा होगा, वो एंजॉय करूँगा. ठीक है, दीज आर मोस्टली जिसमें मैं अकेले जाता हूँ. वरना एक बार ऐसा हुआ कि हम सारे दोस्त थे किसी के, हम हॉस्टल में बैठे हुए थे और हमने कहा चलो वैसे ही भेरा चलते हैं. ठीक है, तो हम सारे भेरा चले गए. ठीक है, लिटरली वहाँ के सर्विस स्टेशन होके बस वापस आ गए थे. और इसी तरह स्पॉन्टेनियसली ऐसा था, एक बार मैं किसी के दोस्त के घर ऐसे ही मिलने गया. ठीक है, साथ में वहाँ पर एक और भी दोस्त आ गया. तो मैंने ऐसे ही लाइक शुगर में फ्लोट किया. उस ज़माने में नया वो करतारपुर कॉरिडोर का सुना होगा, वो नया खुला था. तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ पर चलें. तो लाइक बस सब लोगों ने कहा था हाँ बस चलो. तो हम सारे बैठ के लिटरली उसी वक्त पूरी रात ड्राइविंग करके हम सुबह पहुंच गए थे करतारपुर. तो इस तरह के स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स बहुत ज़्यादा किए हैं. तो these are like not, there is not a single favorite, these are some of my favorites. Okay. So मतलब आपने इतने ज़्यादा ट्रिप्स किए हैं, आप जाते हैं and आप कोऑर्डिनेट भी करते हैं and everything. So what have you like learned from all of these things, like your experiences and everything? What do you take I back? think I would say कि I've learned quite a lot of managerial stuff from all these trips. किस तरह से ट्रिप्स में लोगों को क्राउड कंट्रोल करना है. Yeah. और एक बहुत बड़ा रूल इसमें यह है कि अगर आपको भी कोई ट्रिप मैनेज कर रहे हो और आपने बस रुकवा दी है आपकी कोस्टर में, तो आप लोगों को बेशक बोल दें 15 मिनट के ब्रेक है, लेकिन 1 घंटे से पहले बस नहीं चलने वाली दोबारा. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होगी. और उसके अलावा लाइक वही जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो लोकल्स वगैरह और जो वहाँ पर जो भी टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनके साथ जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, उनमें जो कनेक्शंस बनते हैं, दीज आर सम थिंग्स आई हैव बिल्ट अप ओवर द इयर्स. We have a little segment, something Okay. fun. This or that. ठीक है? ओके, And first thought जो दिमाग में आई, ठीक है? Like from the options. First of all, hiking or rock climbing? हाइकिंग. I second, I support that. I mean, I would say कि rock climbing is risky, लेकिन it's an adventure in itself. Different होती है. मैं तो कहता हूँ नॉट डूएबल फॉर मी. इसलिए Yeah. Okay, so camping or a resort? कैंपिंग फॉर श्योर. रिजॉर्ट का ये है कि यू आर मोर लाइक रिस्ट्रिक्टेड ना. Yeah. लाइक कैंपिंग में यू आर आपकी मर्जी, आप जहाँ जाएं, जहाँ भी आपने सोना. I think I would हाँ, take camping. camping too. Portable कैंपिंग bag. इज मोर द एम्ब्रेसिंग एडवेंचर वाला अपना Part, ना. yeah. अच्छा, living in the moment or coverage? लिविंग इन द मोमेंट फॉर श्योर. मैंने ऑल्दो मैंने बताया कि मैं ट्रैवल फोटोग्राफी बड़ी करता हूँ, ये वो करता हूँ, लेकिन देयर आर टाइम्स इवन विद इन एवरी ट्रिप आई पुट ऑल माई इक्विपमेंट असाइड एंड जस्ट लिव इन द मोमेंट. लाइक इंजॉइंग द मोमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तस्वीरें आपको इंटरनेट से भी मिल जाती हैं, जो कि सीधी सी बात है. और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तस्वीरों में कैप्चर भी नहीं हो सकती. Okay. Suitcase or backpack? Backpack. I've done backpack trips a lot. I've been to Nepal and Russia and all. तो मेरे पास से बैकपैक होता था, उसमें सिर्फ कपड़े और कैमरा इक्विपमेंट बस. वैसे ये कभी तो हुआ हाँ. कि बैकपैक गुम जाए नहीं या चोरी हो जाए? I would die. नहीं, इसीलिए साथ होता है ना. ये वैसे ये अच्छी बात है. सूटकेस घूम सकता है. तो वैसे मेरा सूटकेस भी आज तक नहीं घुमा फॉर्चुनेटली, लेकिन सूटकेस घूम सकता है, लेकिन बैकपैक क्योंकि आपके साथ होता है तो वो नहीं घूमता कभी. तो प्लस पॉइंट बैकपैक होने का. समर हॉलीडेज या विंटर हॉलीडेज? टफ क्वेश्चन. हाँ, दोनों.
why restrict myself to one? There is that. दोनों में like हर डेस्टिनेशन की अपनी होती है. आप समर हॉलीडेज़ में अगर आप चोलिस्तान चले जाएं जैसे हम गए थे, तो हम विंटर yeah. हॉलीडेज़ में गए थे. याद रखो Yeah, उस वक्त कितनी गर्मी थी. मैं मज़े की बात है समर हॉलीडेज़ में भी उस एरिया में जा चुका Oh my हूँ. तो God. you do not want to go there in I've summer holidays. lived there and it's not good in the summers, you guys. Okay, hot air balloon or paragliding? I would say hot air balloon because that's something I've not tried yet. Same, I've never done that too. I've वैसे done तो एक paragliding, बकेट लिस्ट but- में है लाइक कभी कापाडोशिया तुर्की जाके ये हॉट एयर बलून एक बार एक्सपीरियंस करना. Yes, I बहुत feel like अच्छा. hot air balloon is calming, लेकिन slow होता है. Like कितनी देर आप ऊपर enjoy कर सकते हो. Eventually you'll be like अच्छा यार बस बैठे हुए हैं. नहीं? I think I would be like taking in the views and maybe, you know. अच्छा. Stargazing या sunset? ओह आई क्रेव स्टार गेजिंग क्योंकि जितने मैंने लोगों को देखा है कि वो उनको नज़र आया है मिल्की वे, मुझे आज तक मिल्की वे नज़र नहीं आया. या तो मतलब इस सारी जगहों पे गया हूँ, फेरी मेडोज़ गया हूँ, हर जगह गया हूँ, नॉर्थ में गया हूँ. वहाँ पर ये था कि इट्स आइदर क्लाउडी और इट्स आइदर मून लेट नाइट, तो उसमें आपको कभी नज़र नहीं आता. तो हाँ आई इंशाल्लाह. डेफिनेटली क्रेव स्टार गेजिंग. Inshallah, one day. इंशाल्लाह. Local street food or fancy restaurants? Local street food as long as जितना वली जितना लजीज. सही है. That is so true. Traveling inside Pakistan या फिर abroad? यार if you would have asked me this question a year or two ago, I would have said abroad. लेकिन हाँ since डॉलर का रेट बढ़ गया था जब से इमरान खान साहब आए हैं, तो उसके बाद से हाँ आई वुड रेदर प्रेफर क्या कहते हैं ट्रैवलिंग इनसाइड पाकिस्तान. बिकॉज पाकिस्तान में आई डिड नॉट वैल्यू दिस मच, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड. लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं विच आर मच बेटर और इक्वल टू वट एवर यू कैन सी अब्रॉड. तो देर इज़ मच मोर टू एक्सप्लोर देन आई ऑलरेडी सीन अब तक. तो हाँ अब्रॉड भी अच्छा है, यू शुड गो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. बट ट्रैवलिंग इनसाइड पाकिस्तान जब जो अपना मुल्क है वो आप पहले देखें, उसके बाद बेशक बाहर जाएं. दैट आई वुड से. So traveling solo or like with friends or anyone? Yeah, both have their merits. वैसे तो traveling with friends is always good क्योंकि solo में आप you kind of feel vulnerable and if not feeling vulnerable आप बहुत ही बोर होते हो and you feel like people are judging you कि यार ये बंदा अकेला क्यों फिर रहा है, क्या सीन है. Yeah. अजीब सा scene I mean, था. I think I would would say, want to go with my friends too. yeah, I mean, same. especially after Cholistan. I mean, how could I enjoy that trip alone? You know? ये भी है. Exactly. अच्छा. Private transport या फिर local train और bus? यार इंटरेस्टिंग. यार प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ये है कि यू हैव योर फ्रीडम वेयर यू वांट टू गो. ठीक है. स्पेशली इफ़ यू हैव अ रगड कार, सी कोई जो है ना जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो तो बहुत गुड सीन है. लेकिन ट्रैवलिंग बाई ट्रेन हाँ इफ़ इट्स नॉट एयरप्लेन, इफ़ इट्स आई हैव नॉट बीन ऑन अ शिप आज तक. लेकिन इफ़ इट्स ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन और अ बस, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि यू गेट टू सी द सीनरी विदाउट हैविंग टू डू मच. क्योंकि ड्राइविंग में भी आपने ख़ास ख्याल करना होता है. इफ़ यू आर द ड्राइवर यू डू नॉट गेट टू एक्सपीरियंस मच क्योंकि यू हैव टू सी पुट योर आइज ऑन द रोड. तो आई थिंक both works, but I think private vehicle would be a preference. I guess अगर Over here, आपके हाँ. पास दोस्त हो बहुत ज़्यादा तो फिर यार private would be fun. I feel like if it's the local thing, so I'll probably be like maybe train. Train is Train a lot is better. good Bus, because आप train खुद का नहीं गए थे. experience बहुत अलग Yeah. होता है. Okay, so now we have a rapid fire round, MD. No, Jaldi Start jaldi. करो Okay. So, what is the first thing that comes to your mind when you hear the word adventure? Sukoon. 3 most beautiful places you've ever visited. Fairy Meadows, Fifi Islands in Thailand, and Moscow, Russia. What can't you travel without? Qawmi Shnakti Card. Longest time period you've been away from your home. 22 days in Indonesia. Biggest inconvenience during travel? Jaldi. None. यार local food कुछ नया try करना है या फिर what you already like? Local food definitely. Rate yourself as a traveler on a scale of 1 to 10. 8.5, 9. Okay. What's the best thing that you've eaten anywhere?
मुझे अंडे वाला बर्गर. Worst thing you've eaten anywhere? Nothing. No, don't remember, to be honest. One place that you could spend your entire life in. Timer बज रहा है भाई. ये तो पता होना चाहिए. नहीं पता. Time out. One place you wish you never visited? Chillas in Gilgit Baltistan for sure. That is a story I would want to know. वक्त आने पर. And that concludes our rapid fire. Yeah, I hope you guys had fun. Thank you MD And for joining us. No, wait a second. Excuse me. Excuse me, what? क्या? मुझे हाँ. कुछ पूछना है MD से. अब ये यहाँ आया हुआ है, तो I think अभी पूछना चाहिए. क्या भाई क्या हो गया? कोई MD पोल तो नहीं हमने बना एक है. पिक्चर Oh, निकाली है yes, तुम्हारी. yes, I और remember. हमें उस पिक्चर की कुछ समझ नहीं लगी. Can you explain इसमें explain, हो क्या please? रहा है और तुम करना क्या चाह रहे हो? दिखाओ. This is the moment when MD realized यार एक मुझे नहीं ज़माना आना था ना चाहिए. एम्बियंस वर अ कूल थिंग. तो इसमें मैं इजिप्शियन मम्मी बना था. इजिप्शियन वो नहीं होते वो जो Looks like a little. ये मम्मी है? MD लग ही नहीं रहे. Yeah. It doesn't look like failed you. attempt at being a mummy. MD. Oh my god. Sorry. Oh my god. I think बहुत हो गया. अगर Sorry और for दिन the चले तो फिर और चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी हाँ. और पिक्चर्स निकलना शुरू हो जाएंगे. MD wants वही wants Bye, to we gotta leave. go. कम स्टॉक किया करो मुझे प्लीज. Okay, I think अब तुम लोग end कर सकते हो. Yeah. हमें पता चल गया ये क्या था. ज़्यादा पता चल गया. Yeah. ज़्यादा पता चल गया. Bargain for. Bye guys. Okay, guys. Bye.